Okay, students, so in my last lecture, we have studied about the banker's algorithms. Now we will come on see memory management. This is the current topic, whatever I will discuss you to today. Okay, memory management. So here we will see that first, what is the memory management? कि memory management है क्या, ठीक है? It is the functionality of an operating system which manages the primary memory and moves process back and forth between the मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ हमारा कि जो भी सपोज दैट क्या है कि हमारे सबसे पहले कोई भी हमारा फंक्शन होगा वो हमारा किस में होगा, मेमोरी उसमें होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज सीपीयू memory, first one is cpu, okay, this one is cpu and it is consist of the two types of the memory. One is the primary memory and another is the secondary memory. Primary memory where our logical things are stored, and the secondary memory, this is the permanent memory. Okay, so what is written here, it is the functionality, it is nothing, ये कुछ नहीं, it is the functionality of operating system. मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, हम इसमें ये देखेंगे कि जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो हमारे प्रोसेस किस मैनर में और कैसे जो है क्या हो जाएंगे, उनको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। विच मैनेजेस द प्राइमरी मेमोरी। व्हाई इट इज रिटन हियर प्राइमरी मेमोरी? बिकॉज in our operating system or in our computer, if you have a computer, then you will see that primary memory is very less. Primary memory is very less as compared to secondary memory. Primary memory is very less as compared to secondary memory. So here we will manage to how we will manage our all the processes in a प्राइमरी मेमोरी। बिकॉज क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हमारा कोई प्रोसेस प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, अब दूसरे प्रोसेस को हमको प्राइमरी मेमोरी में एग्जीक्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, जब तक हम इसको रिलीज नहीं करेंगे कोई प्रोसेस अपना प्राइमरी मेमोरी से, तब तक हमारा नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा प्राइमरी मेमोरी। एंड मूव्स प्रोसेस बैक, see, moves process back and forth between the memory and disk during the execution. Okay, now come on to see the functionality of the memory management. Here are the basically 3 or 4 functionality of the memory management system. Number 1 is the functionality, it keeps track of every memory location. It keeps track of every memory location. It means क्या है, it will track all the processes, whatever we will make a process in a memory, it will क्या करेगा, it will track. Okay, it will track the memory. Second one, it tracks of whether memory is allocated or not. Yes, this is also main important thing of the memory allocation, memory management. क्या कि जो भी हमने अपना प्रोसेस किया, ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया था, हम क्या करेंगे, ट्रैक करेंगे। अब ट्रैक करने का मतलब क्या हो जाएगा, तो हम वो देखेंगे कि आवर प्रोसेस इज allocated or not. If our process is allocated, then well and good. If not, then we will see that what we will do, कि हम उस यदि हमारा प्रोसेस allocate नहीं हुआ है तो अब हम देखेंगे कि हम उसमें क्या करेंगे। Okay, now come on the third one, track of how much memory is allocated. Okay, first one हमने क्या किया था कि सारे मेमोरीज प्रोसेसेस को हमने क्या किया था, ट्रैक किया था। दूसरे में क्या किया था, हमने देखा था कि वो एलोकेट हुए हैं कि नहीं। ओके, नाउ थर्ड वन में क्या है, ट्रैक ऑफ हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड। अब हम जैसे हमारे प्रोसेस चल रहे हैं, सपोज दैट वी हैव वन मेमोरी, ओके, दिस इज अवर मेमोरी। अब क्या है, इसमें हमारे प्रोसेस आ गया, एक प्रोसेस P1 आ गया, एक प्रोसेस यहाँ पर P2 आ गया, सपोज दिस वन इज P1, दिस वन इज P2। ओके, सो अवर दिस स्पेस इज ओनली लेफ्ट, रेस्ट वन इज फुल। इट मींस सिर्फ हमारे पास ये स्पेस बाकी है फ्री, और बाकी हमारा सारा जो है वो फिल हो गया है। सिर्फ कौन सा, ये वाला स्पेस हमारा खाली है, बाकी ये सब फिल हो गया है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनैलिटी ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, नाउ वी विल सी ऑन द फोर्थ वन। व्हाट इज द फोर्थ? इट टेक्स द डिसीजन व्हिच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड व्हेन। ओके, दिस इज द ऑल्सो मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। हम इसमें क्या देखेंगे कि अब मेमोरी मैनेजमेंट ये डिसीजन लेगा कि कौन सा प्रोसेस पहले जाएगा। ओके, सी विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड व्हेन, कौन सा प्रोसेस जो है वो मेमोरी कब लेगा। इसके बारे में आगे है, सारी एल्गोरिथम्स हैं, कुछ सारी चीजें हैं, वो मैं आपको अच्छे से भी डिस्क्राइब करूंगा। अभी तो हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं कि व्हाट इज द मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, नाउ वी विल सी अगेन।
it updates the status of memory location when it is allocated or freed. Okay, so what is the mean of the freed? Here it is written freed. Freed means free. Okay, allocated means allocation. तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे सबसे अब क्या इसमें क्या हो गया था हमारा, हम ये देखेंगे कौन सा प्रोसेस कब होगा। ठीक है, प्रोसेस भी हो गया। अब हमारा क्या, अब हम उसको स्टेटस हमने देखा, अब हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे जो प्रोसेस हो गया है, एलोकेट हुआ है और फ्री हुआ है, उसका हम क्या करेंगे यहाँ पर मेंटेन करके उसको भी रखेंगे। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट। Now there is a main concept is called protection. Protection. Okay. See, this is the main feature of the memory management. This is the main feature of the memory management. Okay. Suppose that we have one memory. This is our memory. Okay. Memory has two parts. See, he has two parts. Number one is an operating system. Second one is an user area. Okay. नंबर वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एन यूजर एरिया। तो बेसिकली ये प्रोटेक्शन का क्या मतलब है कि हम ये देखिए, आप मैंने लिख रखा है क्या है, प्रोटेक्शन मींस यूजर कैन नॉट एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या हो जाएगा, यूजर बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक फेंस एड्रेस का यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। एक टाइप है क्या, फेंस एड्रेस। इट इज वन टेक्निक, फेंस एड्रेस। इसके बारे में हम अभी आगे बता रहा हूं मैं आपको कि व्हाट इज द फेंस एड्रेस। ओके, सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय फेंस एड्रेस। ठीक है, कैसे कि भाई अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरफेयर ना करे। ये जो हमारा, जो हमने बताया कि हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड रहेगा हमारा जो हमारी मेमोरी है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में और एक यूजर एरिया। तो हमने क्या, प्रोटेक्शन हमारी कैसे होगी कि ये यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फेंस एड्रेस के लिए इंट्रोड्यूस किया, हमने एक टर्म लिया फेंस एड्रेस। अब हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज द फेंस एड्रेस। ओके, नाउ सी व्हाट इज द फेंस एड्रेस। सो फेंस एड्रेस। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी दैट कि व्हाट इज द गोल्स ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, अभी हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट का, तो हम सारी चीजें पढ़ लेंगे इस मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, और इसके आगे मैं आपको फेंस एड्रेस के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। ओके, तो सबसे इसके दो बेसिक गोल्स होते हैं। नंबर वन इज एन स्पेस यूटिलाइजेशन। ओके, नंबर वन इज स्पेस यूटिलाइजेशन एंड नंबर सेकेंड इज रन लार्जर प्रोग्राम इन स्मॉलर मेमोरी एरिया। कैसे हम अपना बड़े प्रोग्राम को एक छोटे एरिया में कैसे रन करेंगे, इस टेक्निक को भी हम इसी में देखेंगे। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट वी विल सी दैट कि क्या है हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन। Number one is space utilization. So what is the space utilization? If we will talk about memory management, then a concept take place is known as fragmentation. अब हम space कैसे allocate करेंगे भाई, कोई भी चीज है, suppose that कि मेरे पास एक main memory है, this is main memory, okay, और this is my secondary memory, okay, this is secondary memory। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सपोज दैट मेन मेमोरी में हमारा कोई P1 है, अब वो जानना किसमें चाहता है, P2 में, सॉरी मेन मेमोरी में है हमारा P1, अब ये जानना किसमें चाहता है, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो अब इसको हम भेजेंगे, अब चूंकि सेकेंडरी मेमोरी हमारी फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंटेड मतलब क्या है, डिवाइडेड है। अब ये सपोज दैट हमारा 5 MB का है, 5 MB का हमारा जो है जो भी प्रोग्राम है। ठीक है, और ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, इफ यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा किस चीज का अराइज हुआ, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है कि जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होती है, मतलब डिवाइडेड होती है छोटे छोटे चंक्स में। फ्रेगमेंटेशन इज नथिंग बट अ चंक्स, डिवाइडेशन ऑफ द मेमोरी इज द फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो अब हमने देखा यहाँ पे P1 हमारा है 5 MB का और ये जाना चाहता है इसमें। अब हम देखा ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, इट मीन्स ये कहीं पर भी सुटेबल नहीं है अभी यहाँ पे। सपोज दैट ये हमारा 5 है, क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। रेस्ट वन इज मेमोरी इज कॉल्ड फ्री मेमोरी। ओके, दिस इज फ्रेगमेंटेशन, और इसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में एक अलग से लेक्चर है। फ्रेगमेंटेशन इज अ होल फुल टॉपिक। ओके, सो वी विल डिस्क्राइब देयर व्हाट इज द फ्रेगमेंटेशन इन डिटेल। ओके, नाउ नंबर वन गोल इज स्पेस यूटिलाइजेशन। मतलब क्या हुआ इसका, मेमोरी लॉस कैन अकर ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। जो मैंने अभी आपको दिखाया था, क्या था हमारा कि जो हमने 5 वहां पर, अभी देखिए मैंने
अभी आप लोगों को दिखाया था कि सपोज दैट हमारे पास क्या था, ये मेन मेमोरी थी और ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी थी। ये इसके पास 5 MB का एक प्रोसेस था, वो यहाँ पर आना था, ठीक है। हाँ, अब ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 5 था, तो ये प्रोसेस यहाँ पर चला गया और ये जो रेस्ट ऑफ द मेमोरी थी ये इतनी, ये क्या हो गई, फ्री हो गई, मतलब वेस्ट हो गई। तो यही क्या चीज लिखी है, मेमोरी लॉस। इसमें क्या है, इसका जो क्या है, इसमें गोल्स ऑफ द क्या है, स्पेस यूटिलाइजेशन। तो क्यों क्यों जब फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, मेमोरी लॉस कैन अकर ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। जब फ्रेगमेंटेशन हमारा होगा तो हमारा मेमोरी लॉस भी होगा, 100% होगा, ठीक है। नाउ अब देखेंगे सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, बाय द यूज ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन मेमोरी रिक्वेस्ट टाइप्स टू कीप फ्रेगमेंटेशन एज लो एज पॉसिबल। जो हमारा फ्रेगमेंट, जो हमारी मेमोरी लॉस है वो कम से कम हो, ठीक है। उसके लिए हम जो है आगे मैं आपको बताऊंगा, फ्रेगमेंटेशन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। ना हम थर्ड वन देखेंगे कि हमारे पास थर्ड वन क्या कहता है हमारा, रन अ लार्जर प्रोग्राम इज स्मॉलर मेमोरी एरिया। कोई बड़ा प्रोग्राम उसको हम छोटे एरिया में कैसे रन करेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट कि हमारे पास एक प्रोग्राम है कितने केबी का, सपोज वी हैव वन प्रोग्राम इज 1000 केबी और हम उसको रन कितने में करना चाह रहे हैं, 500 केबी के एरिया में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी, ओके। वी विल डिस्कस फर्दर व्हाट इज अ वर्चुअल मेमोरी। I think everyone is know about the what is the virtual memory, but we will discuss in the our next lecture what is the virtual memory, okay. So now we will come on the what is the fence address। जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि हम अब पढ़ेंगे क्या, फेंस एड्रेस की हम कैसे अपने उसको, जो हमारे ऊपर हमने सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया था ना, कहाँ गया ये, कि हम कैसे इसको जो है उस वो कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं। हमने क्या कहा था, फेंस एड्रेस। तो हम देखेंगे फेंस एड्रेस बेसिकली है क्या, ओके। फेंस एड्रेस, तो अब हम देखिए फेंस एड्रेस हमारा क्या है। सपोज दैट, yes I will draw, suppose that we have one CPU, okay, one CPU, there is the one fence address हमने यहाँ पे लिख दिया है, this is a physical memory and this is a trap, trap means discard हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही चीज जो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये दिस इज अवर मेमोरी, ओके। मेमोरी में हमारा एक पार्ट किसके लिए था, ओएस के लिए था, एंड सेकेंड वन इज यूजर के लिए था, और यहाँ पर हमारा फेंस एड्रेस आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे अलग होगा, तो मैंने बताया था कौन सा टर्म हम यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फेंस एड्रेस, ओके। तो अब देखिए ये चारों एक तीसरे से कनेक्ट है। अब इसको हम कैसे वो कर रहे हैं कि सपोज सीपीयू जनरेटेड एड्रेस, ये जो सीपीयू है इसने एक एड्रेस जनरेट किया, कितना, 600। सपोज दैट दिस इज केबी, दिस यूनिट इज केबी। सपोज दैट कि उसने कितना एड्रेस जनरेट किया, जो है सीपीयू ने 600 एड्रेस जो है वो जनरेट किया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज कंपेयर्ड विद द फेंस एड्रेस। अब देखिए फेंस एड्रेस हमारे पास कितना है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए ये हमारे पास टोटल हमारे पास कितना था, एक प्रोग्राम था जो ही मैं ऊपर जो जैसा हमने ऊपर बताया था कि आपको एक प्रोग्राम है हमारे पास कितना, 1000 केबी का हमारे पास प्रोग्राम था, जिसको हमको यहाँ पर हम एग्जीक्यूट कर रहे थे 500 में, ठीक है। अब देखिए जो जो हमारा ओएस है वो क्या है, 0 से लेकर के 490, 490 नहीं, 499, ओके। हमारा कहाँ तक रहेगा, हमारा जो है ओएस, हमारा ओएस रहेगा 499 तक, 0 से लेकर 499 तक ओएस का एरिया रहेगा, और 500 पे हमारा यहाँ पर रहेगा फेंस एड्रेस, ठीक है। दिस इज फेंस एड्रेस, दिस वन इज फेंस एड्रेस, और जो है 500 से लेकर के 1000 रहेगा, किसके लिए रहेगा, यूजर एरिया, ठीक है। तो फेंस की हमारी वैल्यू कितनी है, 500। तो हमने देखा कि सपोज दैट सीपीयू ने कोई एड्रेस जो है जनरेट किया 600 का, ओके। तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, दिस इज कंपेयर्ड विद फेंस एड्रेस, ये जो हमारा फेंस एड्रेस है दिस वन इज 500, ओके, बिकॉज वी हैव सीन हियर कितना है 500। तो फेंस एड्रेस हमारा किससे कंपेयर होगा, जो हमारा सीपीयू का फेंस एड्रेस इज 500। नाउ हम क्या देखेंगे कि 600 इज ग्रेटर देन 500,
ठीक है, हमने देखा यहाँ पर क्या है, 600 इज ग्रेटर देन 500, इट मीन्स यस, if it is true then yes, it means it will go to the physical memory. Okay, directly will go to the, it can access the physical memory. It means CPU can access the physical memory. कैसे access करेगा भाई, बस ये इसी यही यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे थे हम, फेंस एड्रेस का कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, सपोज दैट इफ द CPU जनरेटेड एड्रेस ऑफ द 400, क्योंकि 600 हो गया, अब हमारे पास 400 और बचा है, अभी हम 1000 की पूरी जो है 1000 KB का हमारे पास वो था। ठीक है, तो हमने पहले मान लीजिए 600 का एक प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब हो गया, अब हमारा 400, सपोज दैट 400 क्या होगा, इफ द CPU एड्रेस जनरेटेड इज 400, जो एड्रेस जिसने जनरेट किया कितना, 400, नाउ दिस इज कंपेयर्ड विद द फेंस एड्रेस, ये फिर से कंपेयर्ड होगा कितना, 400। अब हम देखेंगे 400 इज लेस देन 500, व्हाट इज 500, 500 is nothing but a fence address. Okay, ये क्या है, हमारा फेंस एड्रेस है, compared with fence address 500 which is generated जो है, so यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द फेंस एड्रेस। ठीक है, एक बार और आपको ओवरव्यू दे देता हूं, फेंस एड्रेस बेसिकली क्या है। फेंस एड्रेस हमारा कब इंट्रोड्यूस होता है कि जब ये जो मेमोरी एरिया है, देखिए ये जो हमारा पूरा का पूरा मेमोरी थी, इसमें इतनी मेमोरी हमारी ओएस के लिए एक पार्ट यूजर के लिए था। ठीक है, अब क्या था, जैसे मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, अब फेंस एड्रेस का बेसिकली काम क्या होता है कि किस कंडीशन में ये यहाँ से यहाँ जाएगा, दिस इज द मेन थिंग। ओके, इसके लिए हम यहाँ पर फेंस एड्रेस हमने इस्तेमाल किया कि भाई कौन सा एक्सेस करेगा फिजिकल मेमोरी की, कोई ये सीपीयू हमारा, अब सीपीयू से कौन सा एड्रेस डायरेक्ट जो है फिजिकल मेमोरी में जाएगा, कब जाएगा, यदि वो किससे होगा, जो फेंस एड्रेस है, यदि फेंस एड्रेस से यदि सीपीयू हमारा फेंस एड्रेस से बड़ा होगा, जो भी एड्रेस होगा, ठीक है, यदि वो बड़ा होगा तो डायरेक्टली गो टू द फिजिकल मेमोरी, अदरवाइज इट विल बी डिस्कार्डेड, वो नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लॉजिकल एंड फिजिकल मेमोरी।